Hello, assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine. Stay home, stay safe. In this current pandemic situation, we are still connected with the online lectures. Today, we are going to discuss on leadership and social responsibility. And here is a book. Here is a book from which I deliver a lecture. If you want to buy and want to download, here is a book, Exploring Leadership. You can see here, Exploring Leadership. And here is the content. We are going to discuss the chapter number 1, Introduction to Leadership. The first, I have to show the content, the course content, uh, for better understanding the learning objective and exam question. Part 1 is an overview of leadership for our changing world. Leadership for a changing world. And here is a detailed content. If anyone want to be take book and go for the reading, so where to go? Yes, the part 1, leadership for a changing world, and then chapter number 1, introduction to leadership. And here is the important key content out there. You will relate with your outline. I would like to show the content, course content. Then I will move forward. Okay, I will show from the book. Uh, yes, I will type here. Okay, let's begin the lecture. I hope you will start up from the book, Exploring Leadership, chapter number 1, Introduction to Leadership. And here to go. What is leadership? And our title of that course is Leadership and Social Responsibility. LSR, Leadership and Social Responsibility, and how this leadership relate with the community, and being a student, what kind of skills we have to be learned. So here is a quote of Rosalind Carter: "A leader take people where they want to go. He's just like a ladder. You put the ladder, and people they give vision to the people. A greater leader take people where they don't necessarily want to go, but ought to be." यानी लीडर हमारा एक रहनुमा है, गाइडेंस है, मेंटोर है, जो हमें हमारा ड्रीम गोल को अकम्प्लिश कराता है, उसको फुलफिल कराता है. तो हमारे पास अगर कोई मिशन है, तो लीडर हमें एक मिशन को विजन देता है. विजन इज अ वे ऑफ थिंकिंग. सो लीडिंग स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की डेफिनेशन है अगर लीडरशिप की, कि लीडरशिप इज़ एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर.
अब ये जो इन्फ्लुएंस है वो कैसा है? इन्फ्लुएंस बाय देयर एक्ट है, इन्फ्लुएंस बाय देयर नॉलेज भी हो सकता है, एक्सपर्टीज ओपिनियन की बेसिस के ऊपर भी हो सकता है, और लीडरशिप इन्फ्लुएंस करना है, दूसरों के बिहेवियर को मोल्ड करना है, ठीक है, और उनकी विलिंगनेस को दे इंक्रीज एंड एनहांस द विलिंगनेस टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल, ठीक है। लीडरशिप जब हम कहते हैं लीडिंग एट द फ्रंट, तो टू मैनी शीप 100 sheep can lead by the one line, but 100 line cannot be lead by the single sheep. So you need some courage, you need some extraordinary skills to lead the other, and how we can mold, how we can influence the behavior of other, and what are the leadership skills required. So leadership is a learn process. Leadership is a learning process. It's an ongoing learning process, lifelong learning, lifelong learning. ठीक है। इफ वी बिलीव दैट वी आर बॉर्न, लीडर्स आर बॉर्न, तो फिर हमें कुछ लिखने पढ़ने समझने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या है भाई, लीडर्स की दुआ करेंगे, लीडर हम हो, और हम लीडर को दुनिया में ढूंढते रहें। तो दिस थ्योरी बिलीव दैट लीडरशिप जो है कैन बी लर्न, इज एन ऑन गोइंग ट्रेनिंग, इज एन ऑन गोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस। जिंदगी के हालात से, मुश्किलात से, तकलीफ से, परेशानियों से, हर्डल से, चैलेंजेस को फेस करने के बाद उससे निकल कर जब बाहर आता है, लड़ झकड़ के पुराने हालात से निकल कर जब वो बाहर आता है, तो फिर वो एक अच्छे लीडरशिप की मिसाल देता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक कोल को देखते हैं। कोल को जब आप एक इंजन, स्टीम इंजन में डालते हैं, तो वो कोल अपने आप को जला के राख करके एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसको आप इंजन, स्टीम इंजन कहते हैं ना, तो वो फिर उसको रन कर रहा है। इसी तरीके से यूरेनियम को देखें, अगर वो बर्न होता है तो फिर वो एक ऐसी एनर्जी पैदा करता है जिससे वो रॉकेट को भी फायर कर दे। बिल्कुल ऐसे ही इंसान के अंदर भी जब बहुत सारे एहसास, जज्बात, परेशानियाँ उसको जब अंदर से चकनाचूर करती हैं, तो उठती हैं, तो उसके अंदर से एक इंथ्यूसिज्म और एक एनर्जी और एक मोटिवेशन, एक जुस्तजू एक पैदा होती है, जो उसको लीडिंग क्वालिटी की तरफ लेके जाती है, और वो दूसरों से नुमाया और मुनफरद हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग करते हैं हमारा आज के कोर्स का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, कि हम डेफिनेशंस को देखेंगे, लीडरशिप क्या है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑथर क्या कहते हैं फाउंडेशन प्रिंसिपल के बारे में, और कन्वेंशनल यानी ये पुराने ज़माने का एक कॉन्सेप्ट था लीडरशिप को लेके, वो क्या था, और आज के नए अदवार में क्या लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। हियर इज अ कंटेंट, ये कंटेंट हमने यहाँ पे मेंशन किए फ्रॉम द बुक। फाउंडेशन प्रिंसिपल है, रैपिडली चेंज टाइम। फाउंडेशन प्रिंसिपल में हम ये देखेंगे कि लीडरशिप के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर लीडरशिप जो है वो बेस करती है। और आज के दौर में हमें पता है कि ये स्मार्टनेस का दौर है, उसमें कितनी तेज़ी से चेंजेस आई हैं। तो जब चेंजेस आई हैं, तो क्या लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स में भी चेंजेस आ गई हैं, ये हम ज़रा देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जामिन द पैराडाइम। देखो, पैराडाइम वो दौर होता है, वो ज़माना होता है जिस दौर में हम जीते हैं और जिस ज़माने की एक सोच रखते हैं। देखें, याद रखें, सोच हमेशा ज़माने की होती है, लोगों की नहीं होती। और जब लोग जिस ज़माने में रहते हैं, फिर वो उस सोच से जो है वो आशना भी हो जाते हैं और उसके इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं। सर, क्या बात कहना चाह रहे हैं आप? देखें, अगर मैं 19th सेंचुरी में रह रहा था, तो 19th सेंचुरी की सोच व ख्याल रख रहे होते। अगर हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो हम 21st सेंचुरी के आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होंगे। 18th सेंचुरी में तो 18th सेंचुरी के आइडियाज़ की तरफ जाएंगे। तो पैराडाइम एक 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 सोच डेवलप करते हैं। तो हमने देखा होगा, जब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं किसी भी कोर्स की, स्टडी की, तो उसका एक एरा होता है। लीडरशिप के साथ भी ऐसे ही है। आई होप इंशाल्लाह हम इन फ्यू लेक्चर्स में हम इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। पूरा मैं आपको हिस्टोरिकल एरा बताऊंगा, और 1 डिके यानी 10 years बाद एक एक लीडरशिप किस तरह से इवॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट। तो ये हर दौर के अंदर लीडरशिप के मायने भी बदलते चले गए। आज के ज़माने में लीडर का मतलब क्या है, तो पहले ज़माने में लीडर का मतलब क्या था,
लफ्ज़ एंटरप्रेन्योर यूज़ करते हैं, तो आज क्या था, कल क्या था, मायने बदल जाते हैं। ज़माने के साथ, वक़्त के साथ, दौर के साथ चीज़ों के मीनिंग बहुत ही चेंज होते चले जाते हैं। उसी तरह से एक और कंटेंट है, द सर्च फॉर न्यू कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ फॉलोवर। देखिए, हर कोई बात करता है लीडरशिप पे, ठीक है। नो वन डॉक्टर इज़ अ गुड डॉक्टर हू इज़ अ पेशेंट हिमसेल्फ। तो देखिए ना, मैं कहूँ कि मैं बहुत ज़बरदस्त टीचर हूँ। अच्छा, इफ समवन आस्क्स, सर आपके कोई स्टूडेंट है? मैं कहा, नो वन इज़ लाइक टू टेक माय लेक्चर्स। ओह! तो फिर मैं कैसे बेस्ट टीचर हुआ? इफ समवन से कि मैं बहुत ज़बरदस्त पोएट हूँ, तो वाओ ग्रेट, तो एवर यू पब्लिश इट? नो। अच्छा, किसी ने पढ़ी? नो। किसी ने अप्रिशिएट किया? नो। तो फिर कैसे कह रहे हो कि यू आर अ बेस्ट पोएट? इफ यू से आई एम अ लीडर, तो अच्छा, ओके फाइन। तो हमारे ज़हन में अगला क्वेश्चन क्या आएगा? इज़ देयर हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव? तो आपने कहा हाँ, आई, मी एंड माई सेल्फ। तो दिस इज़ नॉट द वे। यानी हमेशा हमें एप्रिसिएशन फॉर द अदर्स है, बेस्ट के लिए ना हमें एक एप्रिसिएशन चाहिए, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल ऐसे लीडरशिप के लिए भी, लीडरशिप अकेले नहीं होती, लीडरशिप के लिए फॉलोवरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें फॉलोवरशिप को भी समझना पड़ेगा। लेकिन जब बात होती है तो लीडरशिप पे ज़्यादा हमें बात नज़र आएगी, लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स पे बात होती है, लेकिन आज हम फॉलोवरशिप्स पे भी बात करेंगे। और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक न्यू चेंज है। तो टर्म ऑफ फॉलोअर्स क्या है, फॉलोअर्स कैसे होते हैं, और फॉलोअर्स का क्या बड़ा रोल है इस लीडरशिप के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास और कंटेंट भी हैं, पर्पस ऑफ लीडरशिप हम डिस्कस करेंगे, क्या इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं लीडरशिप के, सोसाइटी को डेवलप करने में लीडरशिप क्या रोल प्ले करती है, कैसे डिफरेंस लेकर आती है चेंज का जो पैराडाइम है उसमें, लीडरशिप में लर्निंग का रोल क्या है, और जो है ये लर्निंग मैकेनिज्म हमें किस तरह से इम्प्रूव करता है डे बाय डे, और ये हम जिम्मेदारी हमारी है या हम लीडरशिप के लिए, या हम किसी और की तरफ रुख करें कि वो हमें लीडरशिप स्किल सिखाएगा। भाई देखें, जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, या फिर हमारा जो एक एक स्टडी मैकेनिज्म है, या हमारे स्टूडेंट्स की जो एक विल है, वो जस्ट टू पास द एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो हम लीडर नहीं बनना चाहते ना, हम भागे भागे रहते हैं चीज़ों के पीछे। यानी हम अगर ऑफिस सैलरी में जाएंगे तो हम चाहेंगे कि बस सैलरी की तरफ भागे हम, और कोई इनोवेशन जिद्दत नहीं करना चाहेंगे। क्लास में जस्ट हम ग्रेड ले लें बस काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लीडिंग एट द फ्रंट नहीं जाएंगे कि कुछ हम पुट करें, हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो ये एक फिनोमेना है, एक लीडिंग एबिलिटी जो है वो आपको एक स्किल सेट के साथ ट्रेन की जाती है। तो ये जिम्मेदारी हम सब की है कि हम जो है वो लोगों को, हम सोसाइटी में लीडर्स पैदा करें, लीडर्स बिहेवियर पैदा करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि लीडर का मतलब एक पॉलिटिकल लीडर ही होगा, या एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉइज के अंडर काम कर रहे हैं तो वो लीडर है। आप अपनी फैमिली में को भी तो लीड करने वाले होंगे ना, आप अपने दोस्तों के ग्रुप में भी तो लीड करने वाले हो सकते हैं ना। तो लीडरशिप का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप कहें कि ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप होगी तो मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। लीडरशिप भी एक स्किल सेट है जो आपको एक आना चाहिए ताकि आप लीड कर सकें ज़िंदगी में। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन, ओके, हम ऑथर के अकॉर्डिंगली लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है कि लीडरशिप रिलेशनल प्रोसेस है, relational process between the colleague, between the uh, followers, in which you are inclusively empowered, purposeful, ethical and process oriented। देखें, चार उसने बुलेट्स बताए हैं, यानी एम्पावर, ठीक है, एम्पावर राइट्स देना, पर्पसफुल कोई ना कोई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, और एथिकल होना ज़रूरी है लीडरशिप के लिए, ठीक है। यहाँ पे एथिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और प्रोसेस ओरिएंटेड, यानी जिस मकसद के लिए बना है, उस मैथड के लिए बना है, जो आपका अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो उसको अचीव कर सकें। इसी तरह से फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑथर क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। और जो है ऑथर अपनी बुक में और किस तरह से कहते हैं, ऑथर के 2-3 पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ
वो एक तो इस बात पे बिलीव रखते हैं कि लीडरशिप कैन बी लर्न, तो आपने लर्निंग के प्रोसेस को कभी स्टॉप नहीं करना। दूसरी बात वो कहते हैं कि लीडरशिप का पर्पस है क्या है कि अकम्प्लिश करना कोई गोल या कोई टास्क को, तो वो भी हमें मद्देनज़र रखना है, और जो लीडरशिप में ओरिएंटेशंस होनी चाहिए जो हम करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो लीडरशिप के साथ वो कनेक्ट करता है ऑथर, वो कहता है कि लीडरशिप का सबसे बड़ा मकसद है चेंज द वर्ल्ड। चेंज द वर्ल्ड ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लीडरशिप मॉडल का, कि वो बदलाव लेकर आए, तब्दीली लेकर आए, चेंज लेकर आए। तो अब हम बात करते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं लीडरशिप के। वो कहता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स जो लीडर के हैं वो ये 3 प्रिंसिपल्स आपके सामने रखते हैं, जिसमें वो कहते हैं नोइंग, बीइंग एंड डूइंग। नोइंग का मतलब क्या है? नोइंग का मतलब ये है कि यू मस्ट नो योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को जानो। वही बात, जिसने खुद को जाना उसने रब को जाना, जिसने रब को जाना उसने सबको जाना। तो इफ यू नो थाई सेल्फ, इफ यू नो योर सेल्फ, इफ यू नो द होल वर्ल्ड, एंड यू बेटर नो द गॉड एज वेल। तो खुद खुद से फिर जो है वो आप खुदा तक भी पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक नोइंग है, नोइंग योर सेल्फ, और हमारा चैप्टर टाइटल भी है नोइंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग अदर। तो नो योर सेल्फ, हाउ चेंज अकर, ये सब बदलाव कैसे आ रहा है, हाउ अदर पॉइंट ऑफ व्यू थिंक डिफरेंटली देन यू डू, कि लोग कैसे इसको अलग सोचते हैं और आप कैसे अलग सोचते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, वाकिफ होना, ठीक है। बीइंग, यू मस्ट बी, क्या बीइंग? बीइंग व्हाट? ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल बीइंग, रैशनल बीइंग, व्हिच काइंड ऑफ बीइंग? एन एथिकल बीइंग, एक ऐसा शख्स जो एथिकल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, इसके उसूल हों। ये नहीं कि दोगला है, वो हिपोक्रेट है, जब चाहे उसने अपनी जो बात बदल दी, तो बात का कोई पास ही नहीं है। जब तक उसका एक एथिकल कैरेक्टर नहीं होगा लीडरशिप के लिए, तो पहले नेसेसरी उसके फॉलोअर्स कहाँ से होंगे? तो फिर झूठों का सरदार में सारे झूठे होंगे। तो यू मस्ट बी एन एथिकल, यू मस्ट बी एन एथिकल लीडर। एथिकल होने चाहिए, उसूल परस्त हो, ओपन, ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, क्लियरेंस हो, केयर करे वो अपने एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की, राइट। तो अच्छा, डूइंग की बात करते हैं कि यू मस्ट एक्ट। लीडर सिर्फ बातें नहीं करता। आप ये समझिए कि लीडर एक बहुत बड़ी डाइस पे बैठेगा और बैठ के बातें करेगा, और एम्प्लॉयज़ को बस सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, और जो है वो बैठेगा, जाओ मेरे नौजवानों तुम काम करो बस। ऐसा नहीं है। लीडिंग एट द फ्रंट होता है, और वो एक्ट कैसे करेगा? वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वही सोशली रिस्पॉन्सिबल है। वो अपने एम्प्लॉय को अपग्रेड करे, उनको ट्रेन करे, उनको अपने बराबर लेकर आए, उनको समझाए। अगर कोई पीछे रह जाता है तो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाए, तभी तो वो लीडर है। वरना खाली वो कमांड देता रहे तो वो एक रिजिड बॉस की तरह से हो जाएगा। यू मस्ट एक्ट। आपने बाय एक्ट, बाय परफॉर्मेंस, बाय डूइंग शो करना कि यू आर अ लीडर, नॉट बाय योर वर्ड्स। देखें, कभी किसी को जानना है तो उसके अल्फाजों को निगलेक्ट कर दें। इनके अल्फाज तो आपको पता है कितने खूबसूरत खूबसूरत गुफ्तगू बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, कानों में रस घोलने वाले अल्फाज होते हैं, और यही मैनिपुलेटिव लोग होते हैं। आप उनको उनके एक्शन से देखें कि उनके एक्शंस क्या हैं, उनको लिस्ट डाउन करें, उससे चेक एंड बैलेंस करें, तो फिर आपको करेक्टर पता लगेगा। फिर आपको पता लगेगा कि ये कितने रिस्पॉन्सिबल है, कितने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो लीडरशिप का तीसरा प्रिंसिपल यही है कि लर्निंग जो है बाय डूइंग तो है, लेकिन लीडरशिप बाय डूइंग होती है, ठीक है। अच्छा जी, कम्युनिटी में क्या उसने परफॉर्म किया है, कितने स्ट्रॉन्ग उसके कमिटमेंट हैं, कितना सोशली रिस्पॉन्सिबल है वो, उसके क्या पैशन है, जज्बात उसके क्या हैं, हमदर्दी, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात करते हैं अगर रैपिडली चेंज की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बुलेट्स और भी एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि फाउंडेशन प्रिंसिपल में कहता है कि लीडरशिप इज़ कंसर्न ऑफ ऑल ऑफ अस। कि एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, ये हम फाउंडेशन प्रिंसिपल की ही बात कर रहे हैं, जो कि ऑथर कहते हैं कि पहली बात, लीडरशिप इज़ कंसर्न ऑफ ऑल ऑफ अस। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि मैं भाई गोरों का लीडर हूँ, मैं कालों का लीडर हूँ, भाई भाई ऐसा नहीं है। देखें ना आप, नेल्सन मंडेला को देखें, तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आवाज़ उठाई और ब्लैक्स को सपोर्ट किया, लेकिन आने वाले वक्त में तो वो वाइट्स के भी लीडर बन गए। तो लीडर ये नहीं कहेगा मैं इसका लीडर हूँ, लीडर तो सच का है, हक का है, इंसाफ का है, उसूल का है। तो लीडरशिप इज कंसर्न
फॉर ऑल ऑफ अस। वो अपनी पूरी कम्युनिटी को, अपनी पूरी नेशन को, पूरी वर्ल्ड के बारे में, अपने लोगों के बारे में इम्प्रूवमेंट और बेहतर चाहता है। वो सिर्फ एक चार दीवारी का 100 लोगों का लीडर नहीं है, वो अपने स्कोप को ब्रॉडर रखता है। लीडरशिप इज व्यू एंड वैल्यू डिफरेंटली बाय द वेरियस डिसिप्लिन एंड कल्चर। ये बिल्कुल सही है। लीडरशिप जो है वो हर जगह पे लीडरशिप जो है वो का स्टाइल भी अलग होता है कल्चर वाइज, और जो है वो लीडरशिप के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हमें नज़र आते हैं। कहीं हमें शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग नज़र आती है, कहीं शेयर्ड लर्निंग नज़र आती है, कहीं हमें सर्वेंट लीडरशिप नज़र आती है, तो कहीं हमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आती है कि लीडर के आगे अब कुछ नहीं बोलना है। कई बड़ी हमें डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप नज़र आती है कि जहाँ सब मिलकर म्यूचुअली चलते हैं और बहुत बात कर सकते हैं। तो देखिए लीडरशिप जो है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये वेरी करती है, और डिफरेंट डिसिप्लिन, डिफरेंट कल्चर। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है कि कन्वेंशनल व्यू ऑफ लीडरशिप हैव चेंज। भाई देखिए पुराने ज़माने का है, जब पुराना टीवी अब नहीं रहा आपके पास, ठीक है, अब वो इंक पेन के बजाय अब टैपिंग पेन, आपके पास टच पेन आ गए, ठीक है जी। अब आप पीसी से निकल के लैपटॉप, और लैपटॉप से निकल के अब आप फ़ोन में आ गए, तो अब आप स्मार्ट हो गए, स्मार्ट टेक्निक्स करें, तो फिर वही घिसे पुटे पुराने सिस्टम थ्योरीज क्यों रहेंगी? तो वो जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ लीडरशिप है वो बदल गई है। पुराना जाएगा तो नया आएगा ना, तो पुराना कॉन्सेप्ट दिमाग से निकालेंगे तो नया कॉन्सेप्ट आएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप भी चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप भी बिल्कुल चेंज हो गया, और ये फ्लेक्सिबल है, मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। अगर आप वही पुराने ज़माने में कहें कि भाई एक बड़ी सी कुर्सी बनाओ, ताज उस पर लगाओ, फूल लगाओ, और जो है वो उधर कनीज़ हों, उधर दो वज़ीर हों, और जो है वो भी शो साथ में जा रहे हैं, भाई वो ज़माना गया। अब इस तरह से नहीं होती, अब डेमोक्रेटिक है, म्यूचुअल होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। ये नहीं कि बस अब मेरा जो हुक्म है सो हुक्म है, मैं बॉस हूँ, मैं लीडर हूँ, ऐसे नहीं होता। अब ज़माने बदल गए हैं, अब जो है वो शेयर्ड प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा ओपन डायलॉग्स एंड लर्निंग है आज के ज़माने में। तो कन्वेंशनल लीडरशिप को बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये बात याद रखें कि लीडरशिप भी जो है वो मोल्ड होती है, फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए, चेंज होती चाहिए। एक और लीडरशिप कैन बी एग्जिबिट इन मैनी वेज। अच्छा, लीडरशिप का मतलब आप जैसे ही लीडर बोलें तो आपके जहन में आ जाए कि भाई कोई कंपनी का सीईओ, एग्जीक्यूटिव, या आपके पास आ जाए पॉलिटिकल लीडर, कंपनी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हेड, ठीक है, या फिर आपको फिर मंडेला, गांधी, जिन्ना, मार्टिन लूथर किंग, ऐसे फॉरेन से जहन में, वॉरियर को जहन में आ रहे हैं। तो लीडरशिप जो है वो आप तो बहुत जगह हमें नज़र आ रहे हैं। तो लीडरशिप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, टीम लीडर होते हैं, ठीक है, कॉमन पर्पस के लिए। फैमिली लीडर है, जो अपनी फैमिली को लीड कर रहे हैं, वो उसके उसूल कवायद बना रहे हैं, ठीक है। और जो है आपको कोई टास्क मिलता है, टीम वर्क मिलता है, उसमें आप एक लीड कर रहे हैं, आपकी लीडिंग टीम है। तो ये आप याद रखें कि लीडर जो है एग्जिबिट होता है मैनी वेज में। लीडर का मतलब सोचते फिर आपके जहन में ये ना आ जाए कि आप अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह घोड़ों पे जो है वो निकलेंगे मैसेडोनिया से और वो पूरा हरकत है, ये वो लीडर नहीं है। अब लीडर इन, अगर हम बिजनेस लीडर की बात करेंगे तो वहाँ पे जो टास्क दिए हैं, जो सेल्स दी आपको अचीवमेंट के लिए दिए हैं, उसको किस तरह से लीड कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। चलें जी, ये सारी बात तो हो गई। अब हम आते हैं रैपिडली चेंज में भी हमने समझे, इसमें से कुछ हमारे बुलेट्स आपको हेल्प आउट हो गए कि ज़माना बदला है। मैंने जैसे भी आपको कहा कि वर्क हार्ड के बजाय हम सिंपलिस्टिक वर्क करें ना, ठीक है। अगर आप एक बंद दरवाजे में जो जहाँ से लॉक ओपन होता है उसके बजाय जो उसके बंद होते हैं उसको, वहाँ से आप दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेंगे तो आप जो है वो अपने आप को थका डालेंगे, लेकिन वो दरवाज़ा ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लॉक से टेक्निक के साथ सीधा विद इन सिंगल फिंगर भी ओपन करेंगे तो बड़ी कम मेहनत में, बड़ी आसानी के साथ जो है वो, इसी तरीके से अगर आप पुली यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सामान उस पे रख के लेके जाते हैं तो आसानी से उठा लेंगे, लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही फ्लिक करेंगे तो मुश्किल होगी। और अगर कुछ स्लोप में है तो बहुत तेज़ी के साथ चले जाएंगे, लेकिन अगर वो फ्लैट है और वहाँ से उठाना तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे देखो जंगलों के ज़माने में ये जो हंटिंग एंड गैदर एज में, तो जब वो हंटर हंट करते थे तो उनको सबसे बड़ा मसला ये दरपेश आता था कि वो जो जानवर को शिकार किया है उसको उठा के कैसे लेके जाए। अब कैसे लेके जाएँ, क्योंकि वो जो ज़मीन थी वो तो इर्रेगुलर थी, तो अब उस पे उसको घसीट के लेके आए तो और एफर्ट लगेगी, मुर्दा जानवर घसीट के लेकर आ रहे हैं।
तो क्या करें, तो वो आपने फ्लिंटस्टोन में वो आवा डावा डू वो देखी है ना, गाड़ी बनी हुई लकड़ी की और उसके नीचे व्हील लगा, तो जब वो चारों तरफ व्हील लगा के या कोई रोलिंग स्टोन लगाया और उस पे रख के फिर घसीटा, बड़ी आसानी के साथ वो रोल होता हुआ आता गया, टक 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 आ गया। ये तो बड़ा आसान सा ये टेक्निक है। अच्छा, आप टेक्निक और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या समझते हैं? सिर्फ फोन ही है? टेक्नोलॉजी, लॉजी इज अ स्टडी एंड टेक्नो इज अ टेक्निक। तो जब जब इंसान ने अपना दिमाग लगाया, टेक्निक लगाई अपने इस काम को आसान करने के लिए, तो उसने स्मार्ट वर्क किया। अब आप मेरी इन सारी एग्जाम्पल से शायद आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से स्टोन एज के ज़माने में जो है वो आपको पता है मैन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज देन द ऑल अदर, और जो डोमिनेटिंग है अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं भाई, आप उसको वाइस सर्जेंट है, ओके भाई, नाइब है, बेहतर है, तो प्रूव भी किया ना उसने। अब इतने बड़े बड़े जानवर, हाथी, जेबरा, लेकिन उनको भी शेर कर लिया। मोगली जंगल बुक में जंगल जंगल फूल खिलाया, तो वो जो जानवर है उनको तो उसने काबू कर लिया इंसान ने। कैसे? अपनी स्मार्टनेस से, अपनी टेक्निक से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। अभी तो वो होमो सेफियन हो गया होमो इरेक्टस से। तो जब उसने सबसे पहले क्या किया, स्टोन फ्रिक करके आग जलाई, और उस आग को लकड़ी में रख के उसने, उसका पहला हथियार था। तो वो बड़े बड़े जानवरों को, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, उनको डरा के पीछे भगा दिया था। तो इंसान ने हमेशा से स्मार्ट टेक्निक को यूज़ किया। तो देखें, ये तो हो गई इतनी सारी एग्जांपल्स। जब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, आज का ज़माना जो है वो स्मार्टनेस की तरफ चला गया। वी नीड टू वर्क स्मार्ट नाउ डेज। ठीक है? अब आप क्या है कि पहले मैं नोट्स फोटोकॉपी कराऊंगा, फिर मैं उसके बंडल बनाऊंगा, मैं स्पायरल बाइंडिंग कराऊंगा, फिर मैं जो है वो उसको सेपरेटर लगाऊंगा। अरे भैया, गया ज़माना। पीडीएफ डाउनलोड करो, ई बुक डाउनलोड करो, उसके अंदर फिर वो रीडर होते हैं, उसमें हाईलाइट का ऑप्शन होता है, गो फॉर इट। नोट्स बनाने, एम एस वर्ड फाइल खोलो, 10 दफ़ा उसको एडिट करो, चेंज करो, ठीक है, और उसको अपने ब्लॉग पे अपलोड कर दो। ज़िंदगी भर के लिए, अपने अगले आने वाली नस्ल तक के लिए उसको सेव करके रख लो। उस डाटा को अपने आने वाले बच्चों को दिखाओ, अपनी जनरेशन को, कि ये रहे मेरे नोट्स। वो नोट्स तो याद ही नहीं रहते, वो रजिस्टर ही खो जाता है। तो अब तो इतना ज़्यादा स्टोर करना, उसको पेनिट्रेट करना, उसको पब्लिश करना, ये सब स्मार्ट हो गया ना। स्मार्ट लोग हैं स्मार्ट ज़माने के, तो स्मार्ट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो लीडरशिप में क्यों नहीं? लीडरशिप में वही दखियन उसी पुराने ज़माने का घिसा पिटाई का अंदाज। तो लीडरशिप भी जो है वो वर्चुअल टीम के साथ हो गई है, डिजिटलाइज हो गई है, स्मार्ट हो गई है। तो रैपिडली चेंज इन टाइम, वक्त के साथ साथ जो है ज़माना बदला है, तो उसमें लीडरशिप के दौरे भी बदले। तो सर, कोई एक एग्जांपल आप हमें बताएं कि लीडरशिप जो बदली हो, तो भाई लीडर भी स्मार्ट हो गया है। आज के ज़माने का लीडर, जब तुम्हारा फ़ोन स्मार्ट कहलाता है, ठीक है, तो ज़माने का टीचर भी स्मार्ट हो गया है कि वो डिजिटल चीज़ों के साथ एम्बेड हो गया है। ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही जो है लीडर भी स्मार्ट हो गया है। तो लीडर, स्मार्ट लीडर के लिए क्या बुलेट्स हैं? कलेक्टिवली स्मार्ट, मोर ब्रेन्स आर बेटर देन वन। तो कोलैबोरेट करने के लिए वो एक सबको पूल करे, दुनिया जहाँ से पूल कर सकता है। ठीक है? एक बेटर कमिटमेंट और कम्युनिटी बना सकता है वो। ठीक है? रिफ्लेक्टिव स्मार्ट, वो आइडियाज शेयर कर सकता है, हज़ारों लोगों की बातों को सुन सकता है। ठीक है? पहले तो वो एक मजमू लगे, महफिल लगे, सब आके अपनी बात बताएँ और फिर वो दरबार से जाते जाएँ, है। अब ऐसा नहीं है भाई, ईमेल में लिख दिया लोगों ने, या फिर अपना कोई खत लिख के, चलो खत भी बहुत पुरानी बात हो गई, ईमेल में लिख दिया, कमेंट्स दे दिया आपने, कोई तो आपको सबके फीडबैक्स मिल गए, मीटिंग्स कर ली वन टू वन। अगर वाइबल नहीं है तो आपने डिजिटली, इस तरह से रिफ्लेक्शन हमें पता लगा कौन क्या सोच रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या है फैसला है, और पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो रिफ्लेक्टिवली स्मार्ट, स्पिरिचुअली स्मार्ट, कि आप आपको अपनी वैल्यूज़, बिलीफ, प्रिंसिपल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना आना चाहिए। आप अपने आप को एग्जामिन करते रहते हैं कि जो है वो हम कहाँ। देखिए, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी फिर मैं बताता हूँ। आप अपने आप पे ऑब्जर्व करके देखिएगा कि आपके जो लास्ट 5 ईयर्स थे और फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं, ऐसा लगता है कि 5 साल में आपने पता नहीं कितने साल गुजार दिए हैं। उसकी वजह क्या है? जो एडवांसमेंट हो रही है, जो चेंज दुनिया में आ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, इक्विपमेंट में हो, कल्चर वैल्यूज़ के साथ हो, हमारी सोसाइटी में हो, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, जब 10 साल 15 साल आप गुजार रहे हैं, लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तो पता नहीं कितनी ही ज़िंदगी आपने आपकी बदल गई है।
बेसिकली जो आपके जो इंटरनल वैल्यूज़ हैं, इनर वैल्यूज़ हैं, वो बहुत तेज़ी से शक्ल हो रहे हैं। वैल्यूज़, बिलीफ, अच्छा जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो उसको मज़ीद पुख्ता कर लेते हैं, लेकिन जो कच्चे होते हैं वो फिर ठग भी जाते हैं, बहक भी जाते हैं। तो देखें, स्पिरिचुअली स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने जो वैल्यूज़ हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके प्रिंसिपल हैं, वो उसको एक रखें, उसको स्ट्रॉन्ग रखें। तो क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनसे आप 20-25 ईयर्स अगो मिले स्कूल ज़माने में या पहले, और बाद में फिर आप मिले तो तब भी उनके वही ख़्याल थे जो आज थे? तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, और अगर उसमें पुख्तगी आ गई तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने आप को स्पिरिचुअली भी स्मार्ट कर लिया, उसने अपने आप को, आपके इनर सेल्फ को स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो ये करैक्टर बिल्डिंग इसी तरह से डेवलप होती है। स्मार्टनेस की हमने बात की, तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दैट द स्मार्टनेस ऑफ द लीडरशिप। अब इस पैराडाइम को कैसे अंडरस्टैंड करें? पैराडाइम मैंने आपको पहले भी रिपीट किया, पैराडाइम का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू, पैटर्न, उस ज़माने की सोच लीडरशिप को लेके। देखो, लीडरशिप आज के ज़माने में वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जिसमें सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है। यानी देखिए, एक 5 लोगों का ग्रुप बनाया, हमने कहा पाँचों लीडर हैं। कैसे लीडर हैं? क्योंकि हम लीड कर रहे हैं एक दूसरे को, और अगर किसी की कोई हेल्प चाहिए होगी, तो जैसे मैं आईटी में अच्छा हूँ, मैं आईटी में हेल्प कर दूंगा। अच्छा भाई, तुम राइटिंग में अच्छे हो, तुम राइटिंग कंटेंट डिलीवर कर। तुम किस में अच्छे हो? तुम्हें जो है वो सोशल कॉन्टैक्ट अच्छा, चलो सोशल कॉन्टैक्ट। तुम्हारा पीआर है तो आप लोगों से अच्छा रिलेशन बना सकते हो, चलो तुम्हारे साथ ऐसा कर लेंगे। तुम जो है वो प्रेसिडेंट बहुत अच्छा कर, चलो भाई सब ने मिलकर काम किया, तो ऑल आर लीड, अपने एक एक टास्क को लीड कर रहे हैं। ये सर्वेंट लीडरशिप, सर्व फर्स्ट। यानी लीडरशिप के लिए यू हैव टू बी सर्व फर्स्ट, देन यू विल बी होल्ड द टाइटल ऑफ लीडरशिप। ये नया चेंज है। ये नहीं कि लीडर का मतलब क्या, ये बॉस है, ये साहब कुर्सी पे बैठेंगे और बैठ के हुक्म चलाते रहेंगे, काम कुछ भी नहीं करेंगे, काम में नल्ले, इनको पता भी नहीं है कुछ, लेकिन ये हुक्म चलाने वाले हैं। तो लीडरशिप ऐसे नहीं होती। लीडरशिप क्या है? मैंने जैसे कहा, सर्विंग लीडरशिप है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। ये नया दौर है, नया पैराडाइम है। और डेफिनेशंस क्या कहती है, देखें, मैंने जैसे भी आपको कहा कि शेयर्ड वैल्यू, दैट ऑनर, डिग्निटी, चेंज बहुत तेजी से है। तो लीडरशिप इज नॉट समथिंग अ लीडर possess सो मच एज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग फॉलोवरशिप। लीडरशिप में बस उसके 4 फॉलोवर्स हों तो भाई ऐसा नहीं है। हर शख्स को अपने हिस्से के बेवकूफ़ मिल ही जाते हैं। तो आप जैसी चाहे सोच रख के बैठ जाएं और आप कहें कि भाई देखो 50 लोग तो मेरे अंडर हैं, तो इसका मतलब जो है वो मैं लीडर हो गया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लीडरशिप के लिए वो जो फॉलोवरशिप और लीडरशिप के दरमियान कितनी अहम आहंगी है, उनके दरमियान गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं। जो लीडर चाहता है वो फॉलोवर कर रहे हैं, जो फॉलोवर चाहता है वो लीडर उसकी बात को फुलफिल कर रहा है। क्या ये टू वे है? क्या दोनों का सेम विजन है? क्या दोनों एक प्लेटफॉर्म पर है या नहीं? या ये फोर्सफुल लीडरशिप है? तो ये रिलेशनशिप मॉडल जो है वो बताता है कि भाई लीडरशिप हैपन और नॉट। तो लीडरशिप में रिलेशन, एथिकल प्रोसेस को देखा जाता है, एथिकल करेक्टर से ही जीता जाता है लीडरशिप स्किल्स को। और देखिए क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं? पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज नज़र आए, फॉलोअर्स में नज़र आए, और जो है इस तरह से जो सोसाइटी में, कम्युनिटी के अंदर। तो ये आज के ज़माने के पैराडाइम है जिसमें वो पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। दे वांट टू चेंज द वर्ल्ड, वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा फॉलोवर पे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि नो वन डॉक्टर इज़ अ गुड डॉक्टर हु इज़ अ पेशेंट हिमसेल्फ। ठीक है? तो इसी तरीके से आप लीडर, आप डायरेक्ट लीडर बने भाई, फॉलोवरशिप की भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? फॉलोवरशिप क्या है? ये भी एक लीडरशिप प्रोसेस है। ठीक है? इंटीग्रिटी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, और बहुत सारी कॉम्पिटेंसी, ये भी एक स्किल सेट है। ये भी एक स्किल सेट है, जो जैसे लीडरशिप सीखते हैं वैसे फॉलोवरशिप भी है। ठीक है? तो अगर इंडिविजुअल्स विद हाई ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट वो आर एबल टू फंक्शन वेल इन चार्ज ओरिएंटेड, इन चेंज ओरिएंटेड टीम एनवायरनमेंट। लेट्स सपोज अगर आप एक किसी ग्रुप के हेड हैं, किसी प्रोजेक्ट में लीड कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वहाँ आप फॉलोवर हो गए। ठीक है? इसी तरह से अगर आप एक जगह लीडिंग टीम में हैं लेकिन दूसरी जगह आप वहाँ पे एज अ मेंबर हैं, तो वहाँ आप फॉलोवर हो गए। तो इंडिविजुअल जो है वो कमिटमेंट को देखें। कमिटमेंट, वो आर एबल टू फंक्शन वेल इन चेंज ओरिएंटेड टीम एनवायरनमेंट। तो जो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोवर है वो यही है कि वो चेंज ओरिएंटेड हो, टीम एनवायरनमेंट को समझे। और मैंने आगे देखे बहुत सारे फॉलोवर्स को लेके मैंने कुछ बुलेट्स बनाए कि कौन कहते हैं फॉलोवर जो इनिशिएटिव लेते हैं। ठीक है? आपके फॉलोवर्स हैं, आपकी बात से मुत्तफ़िक हुए, आपके उस ख़्याल से
असरअंदाज हुए और वो एक विजन उनका डेवलप हुआ, ठीक है। तो और उसके साथ फिर वो फॉलो करते हैं, एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो कुछ चंद लोग होते हैं जो फौरी तौर पे इनिशिएटिव लेते हैं उन बातों पे, तो वो आपके फॉलोअर बन गए, क्योंकि उन्होंने बाय एक्ट बाय अकम्पलिशमेंट ये साबित किया कि वो आपके साथ हैं। वो अपनी मोरल सपोर्ट देते हैं, ऑफर करते हैं और लीडर को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस तरह के कुछ इनएप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस होता है, उससे रेजिस्ट करते हैं। और फॉलोअर्स जो है वो मेंटोरिंग, काउंसलिंग, कोचिंग का सिलसिला लीडर के साथ रहता है और वो उसकी बात को मानते भी हैं, उसके आगे रेजिस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, कोई इश्यूज हैं, कंसर्न है जहाँ वहाँ वो रेज भी करते हैं प्रॉब्लम को, ताकि उनको बताएं, उनको आगाह करें लीडर को, और लीडर से वो मशवरा भी ले सकें, ठीक है। ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं लीडर को। ये नहीं कि देखें, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे दोस्त हैं जो आपको हमेशा ही तारीफ करते रहते हैं, तो आप पहली फुर्सत में उन दोस्तों से छुटकारा जो है वो पालें, क्योंकि हर वक्त सब कुछ अच्छा नहीं होता। अच्छा दोस्त वो है जो आपकी बुराई भी करे, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी ना हो जो हर वक्त बुराई करता रहा तो भी आप छुटकारा पा लें, क्योंकि इसका मतलब वो आपको लेट डाउन कर रहा है। तो एक ऑनेस्ट और जेन्युइन फीडबैक दे। इसी तरह फॉलोअर भी होते हैं जो अपने लीडर को ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, ताकि वो दोनों की बेहतरी चाहते हैं। अच्छा, रोल क्लियर होने चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए, डिवाइड लाइन क्रिएट करे कि भाई फॉलोअर्स की क्या हदूद हैं, लिमिटेशंस हैं, और वो कितनी एक्सपेक्टेशन लीडर से। अब लीडर बनने का मतलब ये नहीं है कि वो फिर सारे काम आपके वो करें, ठीक है। तो एक क्लैरिफाई होना चाहिए दोनों के रोल्स एंड ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन और एप्रिसिएशन। लीडर जो है वो एप्रिसिएशन करता है, लीडर फॉलोअर्स को एप्रिसिएशन करता है रिटर्न में। तो फॉलोअर बनने की भी कुछ उसूल हैं, कुछ कॉम्पिटेंसी हैं। पहली बात तो लॉयल होना ज़रूरी है। ये नहीं कि बेबंदे के लोटे हैं कि कभी कोई तो कभी कोई, जहाँ मफाद दिखे कभी इस टीम के साथ तो कभी उस ग्रुप के साथ, तो कभी इसके फॉलोअर्स। तो जो भी आप जिसको मानते हैं, जिसकी चाहे वो लर्निंग में हो, चाहे वो मेंटोरिंग में हो, या कोई स्पिरिचुअल लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, वर्क में हो, ऑफिस में हो, तो लॉयल होना जरूरी है। बी लॉयल टू योर ड्यूटी, बी लॉयल टू योर लीडर। चेंज ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। और लर्न बिहेवियर हो फॉलोअर का, कि वो अपने आप को भी इम्प्रूव करे, अपने बिहेवियर को वो सीखे। टीम वर्क नहीं करेगा तो कभी भी फॉलोअर नहीं बनेगा। क्रिटिकली थिंक करे, क्वेश्चन करे, आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द लीडर कि ये सब क्यों है, क्या है, कैसे, क्लैरिटी रखे। कन्फ्यूजन ना, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, दयानतदारी दोनों ज़रूरी है परफॉर्मेंसेस के अंदर। और शेयर क्रेडिट, एक दूसरे को सराहें। ये नहीं कि लेग पुलिंग, नंबर गेम चलती रहे कि काम कोई करे नाम कोई और हो, लीडरशिप के चमचे बने हैं और बता रहे हैं। तो लेग पुलिंग, नंबर गेम्स जो है ये, इससे कम्प्लीटली अवॉइड करें। क्रेडिट एक दूसरे को शेयर करें। तो लीडर की हमने क्या डेफिनेशन देखी, हम उसको कंक्लूड करते हैं कि लीडरशिप की पोजीशन क्या है, जो इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड हो, हायर्ड हो, बट अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ ग्रुप, जो जिम्मेदारी लेता हो पूरे ग्रुप। इस तरह से इट रेफर्स टू एनी पर्सन हु एक्टिवली इंगेज विद अदर्स टू अकम्प्लिश चेंज, ठीक है। जो क्या चाहता है, बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, ठीक है। A person can be a leader by taking initiative and making difference in moving the group forward toward positive change। ये मैं इस पे ज़रूर बात करूँगा। बहुत से लोग सुनते हैं और कहते हैं कि हाँ यार, ये तो मैंने भी सोचा था। भाई आपने तो सोचा था ना, दिन में 1000 बार सोचते हो। बात सोचने की नहीं है, सोचते तो लोग हैं ही। बात है कि शुरुआत किसने की, सबसे पहला स्टेप जिसने लिया वो ही इनिशिएटिव है, वो ही लीडर है। तो हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम नहीं होते, कुछ कर पाते, कोई दूसरा कर जाता है, और फिर हम देखते हैं, हम कहते हैं हाँ हाँ यार, ये तो मैंने भी सोचा था, मगर इसने। ये सोचने वाला नहीं है, करने वाला पहले। जब भी कह रहा हूँ मैं बार बार, थिंकिंग से इम्पोर्टेंट है डूअर बनो। A person can be a leader by taking initiative and making a difference in moving the group forward toward the positive change। तो वो सब में सबसे आगे। फील तो सबको बुरा हो रहा है, चाहता तो सब यही है कहना, और लेकिन उस बदलाव के लिए जो पहला पत्थर है, पहला स्टेप है, पहला कदम है, वो लीडर उठाता है, और फिर बाद में जो फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं। और इस तरह से पॉजिटिव चेंज जो है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो आगे बढ़ता है। So that's all about the today's lecture, or inshallah in the next we will be continue from this chapter number 1, and we will also take some exam questions as well.
So I hope you will be understand and enjoying my lecture. Inshallah, we will be meet in the next part of this lecture, chapter number 1, Introduction to Leadership, from the book Exploring Leadership. Take care. Allah Hafiz.